like a big turn off. When we talk about grooming, it's Hey guys, what's up? I'm Keshav. Welcome back to the Spruce Up, a community of gentlemen, a channel for men's lifestyle. Today's video is going to be very interesting because for this video I asked girls about what are the grooming mistakes that guys do, and the answers are really very shocking because what they told me are part of our daily lifestyle and most of you don't even notice that thing. So if you want to know those grooming mistakes, then watch this video till end. And without further waiting, let's see what is the first grooming mistake. I would say, according to me, it's the overgrown hair in the neck area. I would say they look very untidy, and like the boy should have the proper haircut time to time. Like obviously the hair are very important. Like head hair are very important. सुना आपने? Girls don't like when guys have overgrown and untrimmed hair. We are in 2021 and you guys still wait for 1.5 to 2 months for your next haircut. The time is gone for those long and messy hair until unless अगर आपका गोल बाल बढ़ाने का है. Overgrown hair doesn't look good because जब आप हेयर कट कराते हो तो आप अपने बाल अपने हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कराते हो, एंड एज हेयर रेगुलरली ग्रो 2 से 3 वीक बाद आपके बालों की लेंथ बढ़ जाती है एंड आपके बाल जिस हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने सेट कराए थे उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं होते हैं, एंड आफ्टर 4 वीक्स आपके बाल बिल्कुल भी सेट नहीं होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट इवन गेट हेयर कट इवन इन 1.5 to 2 months. एंड इवन मोर वर्स 2 से 3 वीक्स में जो आपके साइड बन्स होते हैं एंड हेयर ऑन द बैक ऑफ योर नेक दे ग्रो अनइवनली, एंड जो साइड बन्स हैं वो आपके हेयर स्टाइल के शेप को और आपके बियर्ड की शेप को बिल्कुल चेंज कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है. एंड द हेयर ऑन द नेक वो भी आपके हेयर स्टाइल की शेप को एंड आपके हेयर स्टाइल को बिल्कुल ख़राब कर देता है. एंड सेकंड थिंग, कोई भी आपके नेक हेयर नहीं देखना चाहेगा बिकॉज इट लुक्स वेरी क्रीपी. सो टाइमली गेट योर हेयर कट इन एवरी 3 weeks. और अगर आपके बालों की ग्रोथ स्लो है देन एटलीस्ट शेप योर साइड बन्स एंड बैक ऑफ द नेक ताकि आपके हेयर स्टाइल की एक आउटलाइन बनी रहे. और अगर आपको लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ इतनी नहीं हुई है और आप 3rd वीक के एंड तक अपने हेयर कट नहीं कराते हो देन यू मस्ट गो टू द बार्बर एट द एंड ऑफ द 4th वीक एंड गेट योर साइड बन्स and back of the neck trim the top according to your hairstyle. So now let's have Ayushi's opinion on guys grooming mistakes. So Ayushi, according to you, what are these mistakes? the one basic thing is that even though I like beard on people, but they do not know how to keep it. Like कुछ untimely बड़ी या कुछ untimely without shape, and basically जो उनकी mustache बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है that covers the first lip, looks like कि एक होती नहीं है या अजीब से मैन्युफैक्चर होता है. इट लुक्स लाइक कि कोई बंदा अपने बारे में केयर नहीं करता अपने लुक्स के बारे में. वेल इट्स नॉट सरप्राइजिंग बट इट श्योरली इज वेरी डिसअपॉइंटिंग because shaping and trimming your beard is a part of men's daily routine, and your beard is one of the first thing which any girls notice when they see you. Depending on your beard style, आप अपनी बियर्ड को अपने बियर्ड स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्रिम कर सकते हो. अगर आप बियर्ड बड़ी रखनी पसंद करते हो देन आप हर वीकेंड पे अपनी बियर्ड ट्रिम कर सकते हो. आप स्टबल पसंद करते हो देन आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपनी स्टबल को शेप करना चाहिए. और अगर आप अपनी बियर्ड को शेडेड रखते हो देन तब आपको अपनी बियर्ड को हर 3rd डे ट्रिम करना चाहिए. एंड रिगार्डलेस ऑफ योर बियर्ड स्टाइल यू शुड शेप योर बियर्ड एवरी 3rd डे बिकॉज नेक हेयर एंड चिन हेयर completely destroys the shape of your beard. And even more worse, as she said, when your mustache covers your upper lip, and you know how much it is hard for your girlfriend to kiss you. Ask her because it looks very unhygienic and very disgusting. So shape your beard every 3rd day and keep in mind these 5 lines: 1st, 2nd, 3rd, 4th and the 5th. And trim your beard according to your beard style regularly. Remember the feeling जो आपको एक fresh haircut and trimming के बाद आती है. You won't stop looking yourself in the mirror for next 3 to 4 days. So why not trim your beard and get a haircut regularly? आपके according क्या grooming mistakes हैं जो guys करते हैं and which is not good?
I think some guys they do maintain their beard and वो अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. But one thing they forget is to take care of their skin. You know, we all have skin issues. It's very normal. And but something that skincare is only for girls. You know, it's not like that. You know, wear your moisturizer, wear your sunscreen. And अगर आपको ज़्यादा एक्ने हो रहा है तो like take care of it. हाँ, लड़के ज़्यादातर स्किन केयर का ध्यान नहीं रखते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि ये लड़कियों का काम है. बट स्टिल इट्स अ गुड पॉइंट बिकॉज लड़कों को भी स्किन केयर की ज़रूरत है. आई डेफिनेटली एग्री विद हर बिकॉज बॉयज थिंक्स कि स्किन केयर इज़ ओनली फॉर गर्ल्स बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. स्किन केयर इज़ ऑल्सो फॉर बॉयज. अगर आप एक स्किन केयर रूटीन बना लोगे तो आप एक लड़की नहीं बन जाओगे. ऑन द अदर हैंड इट शोज दैट यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू लुक गुड. वॉश योर फेस एवरी डे, रात को सोने से पहले एंड नहाते टाइम, बट नॉट विद रेगुलर सोप. इंस्टेड यूज अ फेस वॉश. अगर आप धूप में बाहर जा रहे हो देन यूज ए सनस्क्रीन, और अगर धूप नहीं है देन यूज ए मॉइस्चराइजर. अप्लाई इट ऑन योर फेस, योर नेक, your hands because it prevents your skin from harmful UV rays and slows the aging process, and also it prevents the dry. Scrub every week or every second week. Remove your blackheads from your nose. So change your mindset और अपने लिए एक skin care routine बनाओ and see the change. Your skin starts glowing. You start looking more handsome. So Vidhi, you want to add any other point to this? Yeah, I think जैसे summers में you should never forget to wear your deodorant. Like Right. it's very important. And हमेशा बाहर जाते वक्त at least एक deodorant या एक fragrance ज़रूर लगाएं. And अगर आपको पार्टी पे जाना है या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, डेट पे, you know, just you should have your signature fragrance. You know, उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत खिल के आती है. This is something जो कोई लड़की आपको आपके फेस पे आकर नहीं बोलेगी. Instead, they start getting away from you because you are smelling so bad. She said this in this video because they hate when any guy smelling so bad. On the other hand, अगर आपने एक अच्छा परफ्यूम लगाया है and you are smelling good, then she will definitely compliment you. Regardless of the season, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे सर्दियाँ हो या फिर ऑटम चल रहा हो, आपको हमेशा बाहर जाते टाइम एक फ्रेगरेंस लगानी चाहिए. जब पसीना आता है, चाहे अंडर आर्म्स में, चाहे चेस्ट पे, चाहे बैक पे, यू स्मेल वेरी बैड. जब पसीना आता है कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा. So use a deodorant when you are going out. Use a roll-on for underarms. Apply a perfume when you are going out for a party, for a date, or any other occasion. Because people love when you smells amazing. They will love you and unconsciously वो भी आपके आसपास ही रहना चाहेंगे because you are smelling so good. Having a signature scent of you helps you to get identified easily. बिकॉज जब भी वो कुछ आपकी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड स्मेल करेंगे इट विल इंस्टेंटली रिमाइंड देम ऑफ यू. आपने भी नोटिस किया होगा कि जब कोई आपको साइड से पास करता है एंड उसने एक नाइस फ्रेग्रेंस लगा रखी है देन आप भी उसे मुड़ के देखते हो. और जब भी किसी अच्छी फ्रेग्रेंस की बात आती है या फिर आप कोई अच्छी फ्रेग्रेंस स्मेल करते हो देन आपको इंस्टेंटली उस बंदे की याद आ जाती है एंड यू डोंट इवन नो हिम. सो दैट्स द पावर ऑफ अ नाइस फ्रेग्रेंस. सो ऑलवेज वेयर अ नाइस फ्रेग्रेंस ताकि जब भी कोई अच्छी फ्रेग्रेंस स्मेल करे देन इट इंस्टेंटली रिमाइंड देम ऑफ यू. सो यू कैन ऑल्सो स्पेंड लिटिल मोर ऑन अ नाइस फ्रेग्रेंस बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इट इन योर पर्सनैलिटी, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. बियर्ड के अलावा आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे? Sure, I mean, when we talk about grooming, it's not really haircut and beard only. It is actually your self-care. कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहोगे, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप को कैसे अच्छे लगते हो. Yes, mostly guys think grooming में सिर्फ हेयर कट एंड बियर्ड आती है बट ग्रूमिंग इज मच मोर देन दैट. Yeah, even small things like your nails. I don't know, I have noticed काफ़ी सारे लोग like अपना सिर्फ एक नाखून इतना लंबा बढ़ा के रखते हैं that really isn't very attractive. It's Yeah, it actually looks very weird. odd. आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि लड़कियां आपके नेल्स भी नोटिस करेंगी. But the sad reality is, yes they do. Because girls love their nails a lot. Because लड़कियों को nails बहुत पसंद होते हैं. And on the other hand, आप लोग अपने नेल्स पे कभी ध्यान नहीं देते हो जब तक कोई आपको उन्हें काटने के लिए नहीं बोलता है. जब आप किसी लड़की के साथ हैंडशेक करते हो या फिर आप उसे कुछ पास करते हो एट दैट टाइम दे नोटिस योर नेल्स. एंड अगर आपके नेल्स बड़े एंड डर्टी होंगे दिस सेंड्स द मैसेज कि यू डोंट केयर फॉर योर हाइजीन, यू डोंट केयर फॉर योर सेल्फ एट ऑल. नॉट जस्ट किसी और के लिए, कोई
खुद ही इतना गंदा कैसे हो सकता है कि वो अपने नेल्स का ध्यान ही ना रखे। एंड कुछ लोगों को अपने नेल्स खाना इतना पसंद होता है, वो नर्वस होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या वो बोर होते हैं, वो अपने नेल्स खाने स्टार्ट कर देते हैं। बी अ जेंटलमैन एंड शो सम कॉन्फिडेंस एंड प्लीज़ अपने नेल्स को बख्श दो, बिकॉज छोटे नेल्स आपके फिंगर्स को और आपके हैंड के लुक को पूरा खराब कर देते हैं। इवन मोर इट लुक्स वेरी ग्रॉस। सो रिमेंबर टू कट योर नेल्स एवरी वीक। आप वीक में कोई एक दिन फिक्स कर लो कि आपको उस दिन नेल्स काटने हैं। एंड अगर आपको नेल्स इसलिए काटना पसंद नहीं है बिकॉज नेल्स काटने के बाद आपके नेल्स बड़े रफ हो जाते हैं एंड वो काटने में हार्ड होते हैं, देन आप शावर के बाद नेल्स काट सकते हो, बिकॉज शावर के बाद नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप नेल्स काटोगे तो भी आपके नेल्स बड़े रफ नहीं होंगे, वो बड़े स्मूथ रहेंगे। एंड स्टॉप ग्रोइंग योर पिंकी फिंगर नेल्स। I would like to add one more point. I think the oral hygiene is also the important aspect. I would say like the bad odor of a person, it's like a big turn off for a girl. No one wants to smell what you ate right before talking to them. I know कि आप लोग हर मॉर्निंग में ब्रश करते हो, but that's not enough because आप हर 4 से 5 घंटे बाद कुछ खाते हो and maybe आप in between भी कुछ खाते हो and every time you eat something, some of those food particles stick to your teeth and on your tongue. एंड हमारे खाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद हमारे माउथ से बड़ी फाउल स्मेलिंग ऑर्डर आती है। एंड देन आप जब किसी से बात करते हो तो आपकी ब्रेथ से वो स्मेल उन तक पहुंच जाती है एंड दे ट्राई टू एंड द कन्वर्सेशन विद यू एंड वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। एंड एज यू नो लाइक शी सेड, it's a very big turn off. So what you can do to prevent this is gargle every time you eat something, because उससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में रह जाते हैं वो साफ हो जाएंगे। एंड क्लीन योर टंग 2 times a day, जिससे फाउल स्मेल जनरेटिंग जो बैक्टीरिया होंगे वो साफ हो जाएंगे एंड आपकी ब्रेथ में स्मेल नहीं आएगी। एंड अगर आप किसी रीजन से खुला नहीं कर पाए देन एटलीस्ट च्यू ए माउथ फ्रेशनिंग गम, जिससे आपके माउथ से इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि शी नोटिस यू and you wants to get close to her, then try not to do these mistakes. So that's all for this video guys. I'll meet you in next video and please don't forget to like this video and subscribe to my channel, and goodbye.